Hello everyone, myself Pragati Agrawal. Hope you all are safe and staying at home. Right, so let's start today's class of economics. Continue with the same that we were doing earlier. Earlier we were learning about the unit money and banking, and we had completed the money concepts. And in the previous class, you have heard about the banking system. You have heard about the commercial bank also, right? Banking, when we started, then you had covered the two topics in your previous class: commercial bank and its functions, and how to create the money in the market, or we can say how to create the credit in the market. And if you remember that the money creation and the credit creation process held by the commercial banks, right? And which is completely regulated by the central bank. So that's why in today's class we are going to learn about the central bank and its functions. And the next we will cover also the next part, control of money supply by the central bank, that how the central bank can control the inflation of the money supply in the market. And you have remembered that in the previous class we have heard that there are some money suppliers in the economy: central bank, commercial banks, and government. Remember? So let's continue. Start with the central bank and its functions. You know about the central bank. All of you know that which one is our central bank of our country? RBI. Right, exactly. But a common term for the central bank used in different countries, that is common. The word central bank is common for all the countries, either for the USA or for the India or any other country. But the name of the central banks can vary. Like for in India, our central bank name is the RBI, Reserve Bank of India, right? So, what is the basic meaning of central bank that we are going to learn in this definition? It is an apex body that controls, operates, regulates, and directs, right, the entire banking and monetary structure of the country. पूरे होल इकोनॉमी में जो भी बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, मॉनेटरी सिस्टम चल रहा है, यानी फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी, फ्रॉम वेयर टू सप्लाई द मनी, हाउ मच टू बी सप्लाई इन द इकोनॉमी, हाउ मच टू बी विड्रॉन फ्रॉम द इकोनॉमी, that is completely in the control of central bank. That's why it's known as the apex body, right? इकलौती जो होल इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी, उसकी बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल, कई बार ज़्यादा हो जाता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कैसे करना है, क्या रेट रहेंगे, रेगुलेट्स कुछ इंस्ट्रक्शंस देते रहना, डायरेक्शंस देते रहना, ये सब आपका सेंट्रल बैंक का काम होता है। एपेक्स का मतलब सुप्रीम है, ये आप सभी जानते हैं। इट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। हर कंट्री में टॉप मोस्ट पोजिशन होता है। ऑल द फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। देखो वही वाली बात आ गई यहाँ पे भी, इंडिया सेंट्रल बैंक इज़ द RBI। तो आपसे अगर पूछा जाए इंडिया की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, सो दैट वुड बी RBI, राइट। अब RBI अगर हम जाने तो क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ध्यान रखिएगा, एक एक्ट था, पास हुआ था 1934 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के नाम से जाना जाता है, जो कि RBI के लिए एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 1935। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए RBI वॉज स्टैब्लिश्ड इन, तो आपसे पूछ लेगा 1934, 1935, 1936, 1947, बड़ा कंफ्यूजिंग से ऑप्शन आ गए, राइट। तो ध्यान रखना, इस्टेब्लिश हुआ 1935 में, लेकिन जो एक्ट पास हुआ वो 1934 में, राइट। चलो, सो इंडिया के अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नेम होते हैं सेंट्रल बैंक के। तो जैसे यहाँ पे मेंशन है, अगर हम इंडिया की बात करें तो दैट इज़ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंग्लैंड में नाम है, UK में इसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड, और USA में वहाँ की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। एक जनरल नॉलेज के लिए, बाकी आपका इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है आपका ये फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। आप ये 100% ही मान लो, हालांकि 95 to 100% है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है, और उस 4 मार्क के क्वेश्चन में मोस्ट
प्रोबेबली चांसेस इसी के होते हैं, जो कि इस बार भी आया था बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका, राइट। आता ही आता है क्या, आपसे ये पूछ लेगा जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ बीइंग अ करेंसी अथॉरिटी। सेंट्रल करेंसी अथॉरिटी ये क्या होता है, आप देखिए सेंट्रल बैंक के काम क्या हैं, ये कुछ फंक्शंस बताए गए हैं। पहला, करेंसी अथॉरिटी, आपको मैंने पिछले बार भी बताया था दैट एक्सेप्ट द कॉइन्स एंड 1 रुपीज़ नोट ऑल द अदर करेंसीज, यानी फ्रॉम द रुपीज़ 2 रुपीज़ नोट टू 2000 रुपीज़ नोट किसके द्वारा इशू किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा, क्योंकि एपेक्स बॉडी है, इसके पास पूरा कंट्रोल है मॉनेटरी सिस्टम का, और आपके यहाँ जितना भी क्या नाम है पॉलिसी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो सारा इसके हाथ में है। तो करेंसी इशू ये करते हैं, ये इनका राइट है, पर ध्यान रखिएगा इनकी अपनी मर्जी नहीं चलती है। गवर्नर जब चाहे गवर्नमेंट के फोर्स से, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है इनके ऊपर, ध्यान रखिएगा, तो ये जब चाहें तब उतनी करेंसी इशू करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कि जब भी ये कोई नई करेंसी इशू करते हैं इनको उतनी ही अमाउंट का एसेट रखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ के लिए कि अगर ये 2 करोड़ की नई करेंसी इशू कर रहे हैं देन दे विल have the reserve of 2 rupees crore but in the form of any liquid asset like we can say gold coins हो सकते हैं, गोल्ड बुलियंस हो सकते हैं, राइट। और उस केस में कोई फॉरेन सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, डोमेस्टिक गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, और सी भी हो सकती हैं, राइट। इसके खूब फ़ायदे रहते हैं गवर्नमेंट को। कभी जैसे मान लीजिए उसमें आपने एक वर्ड पिछली बार मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, डिपॉजिट फाइनेंसिंग, यानी जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वो उसको इकोनॉमी में फाइनेंस की ज़रूरत होती है, हम अपने पुराने कर्ज बोरिंग्स नहीं चुका सकते हैं, तो उस टाइम में गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल बैंक से बोरो कर लेती है कुछ टाइम के लिए अपने कर्ज चुकाने के लिए, तो डिपॉजिट फाइनेंसिंग के वक्त भी इसको हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट क्यों बोला गया है कि जितने भी सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी के लिए एक तरीके से बैंकर एजेंट बोल सकते हो या फाइनेंशियल एडवाइज़र बोल सकते हो, उसका काम करते हैं। कैसे, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, अगर जैसे मान लो यूपी गवर्नमेंट ने अभी बोला कि मेट्रो हमने स्टार्ट करनी है और उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए, राइट। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट आरबीआई के पास ज़रूर होता है। आरबीआई उस केस में क्या करेगा, आपका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पास कर देता है तो डायरेक्ट आप ही के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, राइट। और बेसिकली उनके करंट अकाउंट मेंशन किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, किसके द्वारा, आपके आरबीआई के द्वारा, राइट। और कई बार क्या होता है कि लोन्स भी अगर इन्हें ज़रूरत पड़े कुछ टाइम के लिए तो वो भी दे देते हैं। कभी जैसे होता है गवर्नमेंट क्या करती है कि इनको लोन की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट आरबीआई के पास अप्लाई कर सकती है और बोल सकते हैं कि हाँ भैया हमें कुछ टाइम के लिए चाहिए, ओके, उसके बदले आप हमारा ट्रेजरी बिल्स रख लो और हम उसके बदले दे देंगे आपको, अमाउंट दे देते हैं आरबीआई आपको, राइट। नेक्स्ट आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। अब इसके अंदर देखो मैंने 3 सब पार्ट्स लिखे हैं, ये इस टॉपिक क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं आपके, कुछ बुक्स में अलग मिलेंगे कुछ में सेम मिलते हैं, पर एग्ज़ाम में अलग पूछ लेता है तो मैंने इसलिए मेंशन कर दिया अलग कि कभी पूछ लेता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कैसे है सेंट्रल बैंक, तो अगर मेन फंक्शन में नहीं होगा तो आपको नहीं समझ आएगा। तो क्या है बैंकर्स बैंक, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। बैंकों का बैंक कौन, सेंट्रल बैंक, राइट। अभी आपको याद हो हमने बात की थी बैंक के अंदर शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, प्राइवेट हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, आप कई सारी कैटेगरीज में इसमें, तो कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, बहुत सारी वैरायटी के बैंक्स होते हैं, राइट। उन सभी टाइप्स के बैंक का खाता किसके पास रहता है, आपकी सेंट्रल बैंक के पास। जैसे क्या होता है कि हर एक बैंक को, आपको याद हो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कुछ सीआरआर अमाउंट आपको रिजर्व में रखना होता है, वैसे ही कुछ एलआरआर भी रखना होता है आपको, कुछ अमाउंट आप आरबीआई के पास रखते हो, आरबीआई आपको उसके बदले इंटरेस्ट भी देता है, आरबीआई आपको गाइड भी करता है कि आपको किस टाइम पे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए। इन सभी बैंक मतलब एक तरीके से समझिए सारी बैंक्स सेंट्रल बैंक की तरफ से एजेंट का काम करती हैं, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बनी रहे और कभी भी किसी भी
बैंक को अगर रिक्वायरमेंट हो लोन की तो वो ले सकता है। और एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी चाहे प्राइवेट बैंक हो, अब सपोज करो कोई इंडिविजुअल सोचे अरे यार चल ठीक है एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं बैंक अपना, पैसा तो आता रहेगा, आरबीआई से परमिशन ले लेंगे। आरबीआई ऐसे नहीं दे देगा परमिशन, राइट। जब भी कोई बैंक, कोई एन इंडिविजुअल अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करके बैंक स्टार्ट करना चाहता है, राइट, तो उसको ऑफिस जाकर कुछ फॉर्मल लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। उसके बाद आरबीआई उसको ऐसे ही नहीं देता है पैसा। आरबीआई क्या करता है, उसके बदले इंटरेस्ट चार्ज करता है। उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, इसका क्या प्रोसीजर भी अपन आगे इसी स्लाइड में पढ़ेंगे। तो बैंकों का बैंक क्या कहलाता है आपका, आरबीआई कहलाई, सेंट्रल बैंक, और जिसको हम अपनी इकोनॉमी में बोलते हैं क्या, आरबीआई, राइट। तो सुपरवाइजरी का काम करता है उनके लिए। दूसरा है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब है, डूबते को तिनके का सहारा। मतलब जैसे क्या होता है, कई बार सपोज करिए आपके पास हर एक इंडिविजुअल पहुंच गया बैंक से विड्रॉ करने, उस टाइम पे बैंक, क्योंकि बैंक एज्यूम करता है, आपको याद हो अपन ने जब क्रेडिट क्रिएशन पढ़ा था तो हमने क्या बोला था कि एक इंडिविजुअल आया, उसने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया और बैंक ने देखा चलो एक काम करते हैं 20% रिजर्व कर देते हैं, बाकी का 80% हम आगे एज अ बोनिंग्स किसी और को दे देंगे, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एक ही टाइम पर नहीं आएगा हर एक कोई विड्रॉ करने, तो हम इतना पैसा रख के क्या करेंगे, चलो आगे जिसको रिक्वायरमेंट उसको बोरो करके दे देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिस टाइम पर आपको ज़रूरत पड़ जाए फाइनेंस की, तो कौन हेल्प करेगा, बैंक। जैसे लेटेस्ट आपको बताती हूँ, अभी आपका 27 ऑफ अप्रैल में न्यूज़ आया, आप देखिएगा, जिसमें आरबीआई ने बोला है 50,000 की लिक्विड फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है म्यूचुअल फंड्स के लिए। म्यूचुअल फंड्स के लिए क्यों, जैसे क्या हो रहा है, क्योंकि हर कोई इस वक्त कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है हमारे यहाँ, उसकी वजह से लोग पैनिक कर गए हैं, और इवन जिन लोगों के मान लो कुछ रेगुलर इनकम्स थी वो बंद हो गई हैं, तो उन्होंने क्या करना है, अपना म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ कर ले रहे हैं, रिडीम कर ले रहे हैं, मार्केट से पैसा अपना उठा रहे हैं। उस टाइम पे बैंक के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, उनके पास उन्हें लग रहा है हर एक कोई विड्रॉ कर रहा है पर उनके पास पैसा डिपॉजिट होने को आ नहीं रहा, क्योंकि लोगों के काम रुके हुए हैं, बिजनेस रुके हुए हैं, सर्विसेज रुकी हुई हैं। तो उस केस में उनको पैसे की ज़रूरत है, यानी विड्रॉल ज़्यादा हो रहे हैं अभी और डिपॉजिट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा दिया, क्योंकि बैंकों को क्राइसिस ना झेलनी पड़े, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ये ना लगे भैया निकाल लो। अब वो इतनी बड़ी में क्यों निकाल रहे हैं पैसा, इसीलिए कि उन्हें लग रहा है कि पता नहीं कल कुछ हो नहीं हो, मार्केट डाउन हो जाएगा, म्यूचुअल फंड से निकाल लो, निकल लो, क्योंकि मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड के जो भी प्राइसेस आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। वर्ल्ड की हर इकोनॉमी, जब अमेरिका जैसी इकोनॉमी जब इतना डाउन है, तो हर एक को यही लग रहा है कि इनके तो म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाएगा, चलो निकाल लो। तो पैनिक ना करें लोग, और लोगों को ये तसल्ली रहे कि ऐसा इनका पैसा नहीं डूबेगा। इसलिए आरबीआई ने ये मदद किया है कि आपको हम पैसा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैंकों को दिया है जिससे कि क्राइसिस ना हो। तो इसी को बोलेंगे, ये बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का, राइट। नेक्स्ट आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये क्या होता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन का क्या है कि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन जो होते हैं ये बेसिकली उसके लिए होता है। जैसे सपोज करिए कि एक है मिस्टर ए, राइट, और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए का अकाउंट है एसबीआई में, किस में है, एसबीआई में, और मिस्टर बी का अकाउंट है मान लेते हैं पीएनबी में, किस में है, पीएनबी में, राइट। अभी क्या हुआ कि मिस्टर ए ने एक चेक इशू करके दिया, और किसको दिया, मिस्टर बी को। मिस्टर बी का अकाउंट किस में, पीएनबी में। मिस्टर बी अपने गए बैंक में और बोला पीएनबी को कि भैया हमारे जो हमने पेमेंट रिसीव की है वो एसबीआई का दे दीजिए। तो इंटरबैंक ट्रांजेक्शन के केस में आपने कई बार सुना होगा, बैंक बोलती है 3 दिन में पैसा आएगा, राइट। क्यों कहा जाता है, अब तुम गए 5 बजे शाम को बैंक, 4 बजे जब बिल्कुल बंद होने को आ गया, अब बोल रहे हो पैसा ट्रांसफ़र कर दो, कैसे हो जाएगा, नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सारा दिन का जो भी चेक्स होती हैं बैंक क्या करते हैं, चेक ड्राफ्ट जो भी आता है इनके पास सारा दिन का, उसको इकट्ठा करते हैं और फिर नेक्स्ट डे जाते हैं। नेक्स्ट डे कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं एक नाम से कॉमनली नोन जाना जाता है, क्लियरिंग हाउस। क्या होता, सॉरी, राइट, क्या नाम से जाना जाता है, क्लियरिंग हाउस। अब क्लियरिंग हाउस मतलब क्या, साफ़ सफाई वाला घर, नहीं,
क्लियरिंग हाउस का मतलब साफ़ सफाई वाला घर नहीं है। क्या होता है कि हर एक ऐसा मान सकते हो डिस्ट्रिक्ट में या लोकेलिटी, अगर काफ़ी टाउन बड़ा है तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी बैंक्स होते हैं, आप जैसे अपने शिकाबाद या सरसगंज की बात करें तो शिकाबाद में आपके पास PNB, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, कई सारे बैंक्स हैं। तो इन बैंक्स में आपस में ट्रांजेक्शन्स होते होंगे, कस्टमर अलग अलग बैंक के होते होंगे और एक दूसरे को अमाउंट देते होंगे, चेक ड्राफ्ट देते होंगे। तो इन्होंने क्या किया, सपोज कर लो एक किसी पर्टिकुलर एरिया को क्लियरिंग हाउस फंक्शन के नाम से जान दिया। वो कोई बैंक भी हो सकता है या कोई प्लेस भी हो सकता है। सपोज करो मैंने बैंक ऑफ इंडिया को क्लियरिंग हाउस बोला, तो वहाँ पे क्या होगा, एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, जैसे दिन के 11 बजे 12 बजे डिसाइड कर लिया, और सभी बैंक वाले अपने दिन भर में उन्होंने जो भी चेक ड्राफ्ट्स वगैरह रिसीव किए होंगे वहाँ लेके जाएंगे और क्या करेंगे, उसकी एंट्री सीधे RBI के अकाउंट से डेबिट और क्रेडिट कर लेंगे, राइट। क्योंकि हर एक बैंक का खाता किसके पास है, RBI के पास, और हर एक कस्टमर का खाता किसके पास है, अकाउंट किसके पास है, बैंक के पास है। तो ये क्या करेंगे, क्लियरिंग हाउस में जाएंगे, PNB वाले बोलेंगे कि हमें अमाउंट चाहिए, राइट। SBI बोलेंगे हमें अमाउंट डिडक्ट करना है क्योंकि हमारे कस्टमर की तरफ से पैसा जा रहा है। तो उनके अकाउंट में से कम हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है। जब डिडक्ट होता है कस्टमर के अकाउंट में अपन डेबिट लिखते हैं, राइट। तो RBI क्या करेगा, RBI इनके अकाउंट से बैलेंस कम कर देगा, डेबिट कर देगा, और इनके अकाउंट में PNB के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, राइट। तो ऐसे ही जितने भी इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं यहाँ सारे क्लियर हो जाते हैं, इसलिए इसको क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्यों कहा गया है, क्योंकि आपने देखा LRR बढ़ा देना या घटा देना, CRR कम कर देना, ज़्यादा कर देना, उसकी वजह से आपने देखा था कि मार्केट में आपकी कैपेसिटी क्रेडिट देने की कम या ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपको याद हो मनी मल्टीप्लाई का अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था, 1/CRR। अगर सपोज कर लो 1/20% या 20% अगर CRR है तो आपका अमाउंट 5 टाइम्स होता है, और यही CRR अगर सिर्फ 12.5% हो तो ये आपका कितना हो जाता है, दैट इज़ 1000। और आपने पढ़ा था कितना, सॉरी हम बोल रहे हैं, आई थिंक 8 टाइम्स था, राइट, 8 टाइम्स जाता है। चलिए जो भी था, तो यानी आपने देखा था CRR कम होने की वजह से आपकी जो रेट थी, आपकी जो मनी क्रेडिट क्रिएट करने की थी, वो क्या हो जाती थी, ज़्यादा। तो अगर RBI चाहता है मार्केट में लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ी रहे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लें, उनके पास मनी सप्लाई रहे ज़्यादा, यानी 5 टाइम्स ना होकर क्रेडिट हम कितना दे दें, 8 टाइम्स, तो क्या करेगा वो, CRR को कम रखेगा। पहले 20% पे 5 टाइम्स दे पा रहे थे, और 12.5 के केस में अपन 8 टाइम्स दे पा रहे थे, राइट। तो अगर हम CRR को कम करते हैं तो हम क्रेडिट ज़्यादा दे पाएंगे। तो ये मनी सप्लाई इनके हाथ में है कि ये कितना ज़्यादा मनी मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, उस मनी से कितना और ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करवा सकते हैं थ्रू कमर्शियल बैंक, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड। लास्ट फंक्शन आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो जैसे आपके पास, आप सभी को पता है कि हमने अभी बताया आपको, जब करेंसी अथॉरिटी होती है, नई करेंसी इशू की जाती है, तो कुछ अमाउंट आपको रिजर्व के तौर पे रखना होता है, इधर इन द गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज़ के तौर पे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तौर पे। तो वैसे ही आप पढ़ोगे, एक होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट की जाते हैं, मतलब जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं, ध्यान रखना, वॉट एवर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज़ अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ RBI की एक एक निगरानी से होता है, क्योंकि आपका इंटर स्टेट है या वो है आपका इंटर सिटी है या विद इन नेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली हर एक बैंक अपने आप पे एक दूसरे पर नज़र रखती है। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होता है तो वहाँ पे बात आ जाती है फॉरेन करेंसी की। अब फॉरेन करेंसी का कुछ पैसा रिजर्व में हर कंट्री की सेंट्रल बैंक अपने पास ज़रूर रखती है, राइट। और उसे एक कॉमन, क्योंकि आप सबको पता है मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड USA है, तो डॉलर उनका करेंसी है। ज़्यादातर कंट्रीज़ डॉलर में ही अपने
वहाँ पर RBI में रिज़र्व के तौर पर डॉलर में पैसा रिज़र्व रखती हैं। जैसे सपोज़ कर लो मेरे पास जितनी भी लिक्विडिटी है उसमें से मैंने 20% लिक्विडिटी को आपको फॉरेन करेंसी में रिज़र्व में रखा हुआ है, जिसका काम इस्तेमाल मैं आपको बताऊँ कहाँ होता है। जब आप लोग वो पढ़ोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर, तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा मैनेज फ्लोटिंग करके, वहाँ पे इसका इस्तेमाल है। अभी अगर नहीं आता फिजिकली अपना वहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब क्या आता है? Simple, when you have a reserve of foreign currency, whenever there is increase or decrease in the supply of foreign currency, that you may control it. कई बार क्या होता है, जैसे एक छोटा एग्जांपल समझाती हूँ। अभी जैसे हमें $1 के लिए 76 रुपीज़ देना पड़ रहा है। आजकल जो एक्सचेंज रेट है वो है आपका 76, राइट। अभी क्या गवर्नमेंट को लग रहा है, RBI को लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा है, हमें हमारी इंडिया की लिक्विडिटी कम हो रही है, हमारी इंडिया की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो उस केस में हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, मार्केट में और ज़्यादा करेंसी जब ये अपनी इसकी जो सप्लाई होगी अगर वो बढ़ा देंगे तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। सप्लाई कैसे बढ़ा देंगे? RBI के पास जो रिजर्व्स में है पैसा, रिजर्व में जो फॉरेन करेंसी है उसको मार्केट में निकालना शुरू कर देंगे। तो इससे सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, देखो एक चार्ट सा बनाती हूँ। ये है आपके पास, ये सब हमने ग्राफ्स पढ़े थे, आपको याद हो, ये मार्केट फोर्सेज एंड सप्लाई आपको याद हो तो ये हुआ करता था आपका डिमांड कर्व, ये हुआ करता था आपका सप्लाई कर्व। यहाँ पे मैंने ले लिया एक्सचेंज रेट, यहाँ पे मैंने ले लिया डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, राइट। फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई बढ़ रही। अब सपोज कर लो मैंने क्या किया, इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई कहाँ जाता है? राइट वर्ड शिफ्ट जाता है, ये देख रहे हो। तो ये हो गई एक लाइन न्यू। अब न्यू सप्लाई क्या हो गई? ये वाली आ गई, राइट। तो अगर मैं एक्सचेंज रेट की बात करूँ तो एक्सचेंज रेट पहले ये वाला था, राइट। और अब जो एक्सचेंज रेट आएगा वो कौन सा आएगा आपका? ये आएगा, राइट। ये आया। तो यानी एक्सचेंज रेट जो है वो आपका कम हो गया। कम कैसे हुआ? सी, ये आपका कम हो गया एक्सचेंज रेट। सपोज कर लो अगर ये 76 था तो अब मैं मानती हूँ 74 हो गया, यानी अब मुझे $1 के बदले कम अमाउंट देना पड़ेगा इन इंडियन रुपीज़। तो इसको सही कंट्रोल करने के लिए किसने इनिशिएटिव लिया? सेंट्रल बैंक ने लिया। कैसे लिया? उन्होंने अपने रिजर्व्स में से फॉरेन करेंसी की सप्लाई मार्केट में निकाल दी, बेच दिया उसको। तो सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी बढ़ गया मार्केट। ये फॉरेन एक्सचेंज के अंदर खूब सारी ग्राफ्स हैं, आपको अच्छे से समझ आएंगे वहाँ पे। नेक्स्ट, आफ्टर दैट यहाँ पे एक मैंने कंटेंट दिया हुआ है, ये सिर्फ मैंने अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने बैठूँगी तो बहुत लंबा जाएगा। और इसका भी मैंने शॉर्ट समराइज आगे बनाया हुआ है। ये आपकी NCERT बुक का है। अब क्योंकि बहुत सौ ने NCERT बुक नहीं ली है या उनके पास कंटेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका एक स्कैन करके पेज लगाया हुआ है। इसको आप ज़रूर रीड करेंगे। वीडियो जब आप देख रहे हो तो प्लीज़ पॉज करके इसको ज़रूर रीड करिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बताया गया है, पॉलिसी टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट। कुछ पॉलिसीज़ इस्तेमाल की जाती हैं जिससे मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाए। वो कैसे, अब मैं आगे समझाती हूँ। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है, तो आप इसको भी ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा स्टॉप करके। ये है उसका शॉर्ट समराइज कि सी मॉनेटरी पॉलिसी या हमारे यहाँ क्या है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ मैथड्स या इंस्ट्रूमेंट्स अपनाए हुए हैं, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटी जो नंबर्स में, जो क्वांटिटी में जिसकी हम बात कर सकें, और क्वालिटेटिव जहाँ पे क्वालिटी की बात की जाए। तो क्वांटिटेटिव में क्या है? बैंक रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सुनने में थोड़ा अजीब लगते हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट बेसिकली जो भी अभी मैंने आपको याद हो बताया हुआ था कि RBI किसी भी बैंक को ऐसे ही पैसा नहीं देती, राइट। अब सपोज कर लो मैंने यहाँ पे 3 वर्ड लिखे, RBI, बैंक और कस्टमर, ठीक है। क्या होता है, जब भी कोई नया बैंक खोलता है या कुछ भी है तो पैसा किससे लेगा? RBI से लेगा। RBI इनको मनी देता है, राइट। इनको मनी लेता है और उसके बदले जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी आर बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट
किसको दे रही है? RBI को दे रही है, राइट, जिसके बदले उन्होंने मार्केट आगे कस्टमर को भी पैसा देना है. दैट रेट इज़ नोन एज द बैंक रेट, राइट, क्योंकि द रेट विच इज़ एप्लीकेबल टू फॉर द बैंक थ्रू द RBI इज़ नोन एज बैंक रेट, सिंपल बोल सकते हो. बट इट इज़ फॉर, इफ़ इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर ये लंबे समय के लिए हो रही है, जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे रहा है RBI अदर बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, तो उसके द्वारा जो रेट चार्ज की जाएगी दैट विल बी बैंक रेट. लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए हमें ज़रूरत है और तब RBI बैंक को फाइनेंशियल नीड के लिए पैसा दे रहा है और शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ ज़रूरत थी बोरो करने की बैंक्स को, तो बैंक्स उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही हैं तो यही शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी रेपो रेट. तो दोनों ही रेट्स का मतलब वही है, द रेट विच इज़ चार्ज बाय द RBI from commercial banks is known as rate, right, bank rate general. But it is, if it is for the long term it would be considered as the bank rate, or if it is for the short term it would be known as the repo rate, right. इसी रेपो रेट को यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख सकते हो रीपर्चेज के नाम से हाईलाइटेड है. तो रेपो रेट इज ऑल्सो नोन एज द रीपर्चेज एग्रीमेंट या रीपर्चेज रेट के नाम से भी जाना जाता है इसको. नेक्स्ट आते हैं हम आगे इसी चीज़ में फर्दर. ये दोनों हो गए. कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अपन आगे डिस्कस कर चुके हैं. कैश रिजर्व रेशियो का अमाउंट जो आप किसके पास, अपने पास खुद के पास रखते हो और उसके बदले या कभी भी कम आपको जो आगे कस्टमर्स हैं उनको विड्रॉ करना हो तो आप उनको दे सकते हो. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो आपको लिक्विड एसेट्स में आपको कुछ पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है, दैट विल बी द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो टाइम वेरी करता है, राइट. नेक्स्ट आता है आपके पास ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है कि गवर्नमेंट की कुछ अथॉरिटी वो होती हैं सिक्योरिटीज़, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल नहीं करती, वो क्या करती है, बैंक्स के थ्रू करवाती है. और बैंक्स में भी कैसे, RBI के थ्रू. वो RBI को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप क्या करो, मार्केट में सिक्योरिटीज़ इशू करो, ठीक है. ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट RBI वुड इशू सम सिक्योरिटीज़ एंड दैट वुड बी फर्दर सेल एंड परचेज थ्रू द बैंक्स. वो बैंक्स के थ्रू आगे सेल और परचेज की जाएगी. अब क्या है, सपोज करो हमने ये देखा मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत पैसा है, तो मार्केट से पैसा ग्रैब करना है, मैंने उठाना है, तो हम सिक्योरिटीज़ मार्केट्स में बेच देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल समझो, हम बोलते हैं ना महंगाई बढ़ गई है, और महंगाई बढ़ गई है इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई. आप लोगों ने क्लास 11 तक एक चीज़ पढ़ी होगी कि व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब आ जाता है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, मनी सप्लाई इन द मार्केट. जैसे फॉर एग्जांपल समझो बारिश हो रही है, तुम मार्केट में गए और तुम्हें भुट्टा मिल रहा है रास्ते में, तो तुमने क्या किया कि 10 रुपये का भुट्टा था और तुम खरीदना चाह रहे थे, बट फिर तुमने कहा कि नहीं भैया तुम एक काम करो, इसमें अभी तुम्हारे पास 10 ही रुपये थे पॉकेट में, तो तुमने कहा ठीक है 10 रुपये का आप ले आए भुट्टा, लेकिन आप सपोज करो तुम्हारे जेब में हो 100 रुपीज़, राइट. तो तुम क्या बोलो, भैया बिल्कुल अच्छा वाला सबसे बढ़िया वाला निकालना और खूब अच्छा करारा भूनना, चाहे इसके बदले तुम मुझसे ज़्यादा पैसे ले लेना. अब क्या हुआ, उसी 10 रुपये वाले अमाउंट वाले भुट्टे को तुमने ही तो 20 रुपये में या 25 रुपये में बोला भैया अच्छा देना, नमक मसाला लगा के देना, ये वो. इसका मतलब तुम्हारे जेब में जब तक 10 रुपये थे तब आपने उसको 10 रुपीज़ ही दिए, लेकिन जहाँ आपकी पॉकेट में पैसा ज़्यादा आ गया, नहीं अब आपकी पॉकेट ज़्यादा बोल रही है इसलिए आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो, अगर नहीं बोलती तो आप खर्च नहीं करते. इसका मतलब आपकी जेब में मनी सप्लाई ज़्यादा है. जैसे आपके में मनी सप्लाई ज़्यादा, वैसे ही बाकी पूरी इकोनॉमी में लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा. तो सरकार कहती है अच्छा तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट बोलती है ज़्यादा पैसा आ रहा है, लाओ वापस करो. अब वापस कैसे करोगे, ऐसे ही तो नहीं दोगे तुम, बोले कि हम क्यों देंगे, हमारा तो 100 रुपीज़ है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तुम्हें लालच देगी. लालच कैसे देगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू. जैसे अपने पास ऑप्शन आया कि अरे ये पता चला गवर्नमेंट ने बॉन्ड निकाले हुए, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज निकाली, चलो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. लोग प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बेहतर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना क्यों बेहतर समझते हैं, उसका रीज़न क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उन्हें इस बात की तसल्ली होती है कि इसमें इनका पैसा डूबेगा नहीं, चाहे सरकार कैसे भी देगी, इनको फिक्स रिटर्न्स अगर बोल दिए ना तो देगी. लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में सब कुछ मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, राइट. कुछ क्राइसिस हुए, मार्केट डाउन, शेयर मार्केट डाउन, उनका लॉस हो गया, तो इस केस में लोग प्रेफर करते हैं क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट RBI के थ्रू बोले
कि चलो मार्केट में निकाल दो। तो फिर समझना, अगर लोगों के पास, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉ करूँ, एक ये सपोज कर लो ये कोई इंडिविजुअल है, राइट, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, राइट, बहुत सारे पैसे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है चलो हमें आरबीआई को वापस करो, राइट। तो आरबीआई क्या करेगी, इनसे वो पैसा ले लेगी और उसके बदले में उनको सिक्योरिटीज़ सेल कर देगी, यानी यही बॉन्ड्स वगैरह, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन्होंने दी और इनके पास से पैसा निकल गया, यानी इन्होंने मार्केट से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। किसने ग्रैब करी? आरबीआई ने ग्रैब कर ली। तो लोगों के पास पैसा कम हो गया। और सपोज करो यही चीज़ लोगों के पास पैसा ना हो, जैसे आजकल अब कोविड-19 के टाइम पे लोगों के पास मनी सप्लाई नहीं है, तो गवर्नमेंट दे रही है अपनी तरफ से, आपके फंड्स में पैसे डाले जा रहे हैं, सिर्फ किस लिए, क्योंकि लोगों तक अभी जो लोग लोन अगर कोई ले रहा है तो उस लोन पे ईएमआई कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, राइट। ये सब किस लिए, क्योंकि अगर मार्केट मनी सप्लाई कम है तो बढ़ाने के लिए कुछ एक्शंस लिए जाते हैं, और जब भी कभी मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए भी कुछ एक्शंस लिए जाते हैं। तो वो जो एक्शंस मनी सप्लाई को क्वांटिटेटिव टर्म्स में कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाएँ, वही क्या कहलाते हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। चल थोड़ा सा ही है, आपका ज़्यादा रह भी नहीं गया। देन अगर क्वालिटेटिव कुछ कंट्रोल्स होते हैं, जैसे जिसमें हम नंबर्स में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हम सिर्फ एज, क्योंकि बैंकर्स बैंक हैं, सभी बैंकों के बैंक हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हैं, तो हम जो कहेंगे बैंक्स मानती हैं। तो वैसे ही उसमें आता है पहला पॉइंट आपका क्या? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? सपोज करो आपको लोन की ज़रूरत है, राइट। आपने क्या किया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी, आपने उसको मॉर्गेज किया, यानी गिरवी रखा, और उसके बदले बैंक से कहा एक काम करिए आप, मैं ऑब्वियसली आप यही चाहोगे 1 करोड़ की है तो 1 करोड़ पूरा मिल जाए, लेकिन बैंक ऐसा नहीं देती। तो बैंक ने बोला हम एक काम करते हैं, आपको 80 लाख तक का हम फाइनेंस दे देंगे, इसमें लोन दे देंगे। तो ये जो बीच का 20 लाख है, दिस इज़ द मार्जिन, राइट, दिस इज़ द मार्जिन। तो ये कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब सपोज करो गवर्नमेंट आरबीआई ये देखती है लोगों के पास बहुत सारा पैसा है मार्केट में, तो इतना आसानी से इनको लोन मत दो, थोड़े मनी सप्लाई पे कंट्रोल करो। तो वो क्या बोलेगी कि अगर कोई इंडिविजुअल जाएगा ना लोन लेने, बोलेगा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, चलो लाओ दे दो, कितना दे सकते हो उसका मैक्सिमम 70 वो 80-90 लाख दे दो। वो क्या, नहीं, मैं सिर्फ आपको 70 लाख दूंगा। तो अब जो इसके बीच का मार्जिन रिक्वायरमेंट रह गया वो कितना, 30 लाख, यानी मैंने 20 लाख से बढ़ा के 30 कर दिया, यानी मार्केट में अब पैसा 80 लाख नहीं जाएगा, लोगों के पास कितना जाएगा सर, 70 लाख, यानी कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल द मनी सप्लाई। अब बोलो मैम ये भी तो क्वांटिटी में ही है बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए हमने कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं किया, हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए थोड़ा लिमिट में, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है उसको थोड़ा बढ़ा दो, अपने हिसाब से देख लो, और लोगों को इसकी कोई फिक्स रेट बताता नहीं है आरबीआई, ये बैंक के ऊपर अपना डिपेंड करता है, राइट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट आपको बताता है कि जैसे हमें ऑप्शन है कि एजुकेशन लोन पे देना है, होम लोन पे देना है, बिज़नेस के लिए आपको बिज़नेस लोन देना है, राइट। हमारे पास हर तरीके के कस्टमर आते हैं लोन के लिए, तो हमने क्या बोला कि प्रेफरेंस दो इस वक्त वहाँ पे जहाँ से आपको लगता है, अगर मान लो मार्केट में हमने क्या बोला कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो अब मनी सप्लाई कम करने के लिए क्या करना है, हर एक को मत दो आसानी से, बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, पेपर वर्क ज़्यादा करो और 10 कानून निकालो कि जिससे आसानी से हम लोन ना दें। दैट विल बी राशनिंग। राशनिंग मतलब एक तरीके से आप छटनी कर रहे हो कि क्रेडिट, अगर ये इसमें से बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना, तो हम सिर्फ उन्हीं को दें जिनसे हमें लगे कि हाँ चलो ये तो चिका, अब होम लोन वाला है, हो सकता है शायद उसकी जॉब चली है या कुछ भी है तो वो नहीं पे कर पाए, लेकिन बिजनेस लोन वाला रीपे ज़रूर कर देगा, राइट। तो ऐसे अपनी समझदारी से करिए, जिसमें बैंक कुछ नहीं फिक्स करता, आरबीआई कोई फिक्स नहीं करता। मोरल सॉल्यूशन, मोरल सॉल्यूशन बड़ा अच्छा है। मोरल सॉल्यूशन कहता है, जैसे कई होता है कि पापा ने आपसे कह दिया बेटा घर से बाहर नहीं निकलना, आपने कहा नहीं मुझे जाना है, फिर भी जाना है, पापा ने डांट दिया, ठीक है, फिर अभी पापा प्यार समझा रहे हैं, तुमने नहीं समझाया, फिर डांट दिया तो रुक गए। इसका मतलब क्यों मान रहे हो आप उनकी बात, क्योंकि एक डर की वजह से, राइट, उससे पहले रिस्पेक्ट की वजह से। सेम ऐसे ही बैंक्स भी करते हैं। कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई उनका फादर ऑफ ऑल बैंक्स है, आरबीआई इज़ द फादर ऑफ ऑल बैंक्स। तो आरबीआई ने नॉर्मली बोला तो हम उनकी बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो हमारे फादर, लाइक अरे बैंक के, कमर्शियल बैंक के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो फादर ने जो कह दिया बात मानते हैं, मान लिया। और अगर कभी कोई कमर्शियल बैंक ऐसा करे
कि वो बात ना माने RBI की, तो फिर RBI को ज़बरदस्ती मनवाना आता है। जैसा फादर को आता है ज़बरदस्ती मनवाना, वैसे ही RBI को भी आता है कमर्शियल बैंक से बाहर। जोक्स अपार्ट, सीरियस मत हो जाना, राइट। चलिए देखिए, तो ये सारे कंट्रोल हैं आपको ये बताने के लिए कि मार्केट में मनी सप्लाई कैसे किया जाता है। अब बोलो मैम इतना सारा कंफ्यूजिंग है, तो इसके शॉर्टकट बता दी, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। आपके पास कुछ केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या है ज़्यादा, इसको कंट्रोल करना है, इसको क्या करना है, कम करना है। मनी सप्लाई को कम करने के लिए इन सभी की रेट्स को बढ़ा दो। ये शॉर्टकट बता रही, बैंक रेट बढ़ा दो, यानी ब्याज दर बढ़ा दी, तो अब कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको, आपके RBI को, तो वो आपसे ही चार्ज करेगी। फिर तो आपसे ज़्यादा चार्ज करेगी तो हर एक कोई नहीं जाएगा लोन लेने। अब लिमिटेड लोग लोन लेने आएंगे, पहले सबके सब जा रहे थे लोन लेने, अनलिमिटेड लोग जाएंगे। सेम वैसे ही रेपो रेट बढ़ा दो, कब लोग लोन लेने आएंगे। रेशियो 20% था, 30% बढ़ा दो, लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगी। यानी इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जस्ट रेज द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इन सबको बढ़ा दो, सिंपल, बहुत आसान है, करके देखना। चलिए नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड। एक क्वेश्चन आ जाता है कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के बीच में डिफरेंस, तो ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी फिनिश करती हूँ और बुक से रीड कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा। सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी है और ये एक आपकी इंस्टीट्यूशन है, राइट, एक कॉमन, जिसके थ्रू आप एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ग्रांटिंग लोन्स करते हो। ये इकलौती होती है, और ये क्या है, एक वन ऑफ द यूनिट है बैंकिंग सिस्टम, वरना बैंक्स तो अपने आप बहुत हैं, जिसको गवर्नमेंट गवर्न और कंट्रोल करती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे बेसिक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम किया जाता है, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा जाता, लेकिन इनका मतलब प्रॉफिट कमाना है, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हों चाहे वो पब्लिक बैंक्स हों। जहाँ पे यहाँ पर सेंट्रल बैंक की सोल मोनोपोली, अकेला कंट्रोल होता है क्योंकि सेंट्रल है, और इनके हाथ में करेंसी इशू करने की कोई राइट्स नहीं होते। दे डू नॉट डील विद द पब्लिक डायरेक्टली, पब्लिक से नहीं डील करते, और कमर्शियल बैंक्स आपकी पब्लिक से डायरेक्ट डील करती हैं। दिस इज़ ओनली सेंट्रल बैंक एंड ड्यू टू द पेक्युलर नेचर इन एक्टिविटी, जैसे अपने एग्जांपल इंडिया, और ये कई सारी बैंक्स हैं जैसे अपने स्टेट बैंक, पंजाब बैंक एंड ऑल। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। और वीडियो एंड करने से पहले आप सबको एक चीज़ और बता दूं, मैंने आज का जो असाइनमेंट दिया उस असाइनमेंट पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, तो वो क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने हैं। आपको 4 चीज़ें अच्छे से याद हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं पूरे कंप्लीट, मनी और बैंकिंग वाली यूनिट से 20 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। आपको जितने मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हैं वो सारे आपके फेयर रजिस्टर पे क्वेश्चन अलॉन्ग विद आंसर ज़रूर होने चाहिए। फोर्थ, आपको मैंने एक क्वेश्चन उसमें एक्टिविटी के तौर पे दिया हुआ है, जिसमें अभी रिसेंट कोविड-19 के द्वारा RBI के द्वारा जितने भी एक्शन डिसीजंस लिए जा रहे हैं, आपको एक बॉक्स बनाते हुए एक सेपरेट पेज पर अपने रजिस्टर में ऑब्वियसली उसको बनाना है, एज जैसे आप लोग बनाते हैं ना न्यूज़ या हेडलाइंस के तौर पर, इस तरीके से आपको 10 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जिसका डिटेल में कभी भी आपसे पूछ सकती हूँ। ये चारों चीज़ें करने के बाद आपका रजिस्टर क्लियर हो जाएगा। आपको मैं 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, वेडनेसडे आपकी क्लास है, थर्सडे और फ्राइडे। सैटरडे मॉर्निंग 9 बजे तक मेरे पास सभी के रजिस्टर्स की फ़ोटो क्लिक होकर आ जाएं, जिसमें आपका ये सारा काम हो रहा होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आपके असाइनमेंट, आपके नोट्स और आपकी ये जो एक्टिविटी है। जिसका नहीं आया, आई विल डायरेक्टली टॉक टू द प्रिंसिपल मैम एंड आई विल, क्योंकि दिस इज़ जस्ट लाइक एन रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड में ही रखना है। हमने तो आप काम कर, अब हम यहाँ से मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो उधर आप भी मेहनत तो दिखाइए, आप पढ़ क्या रहे हैं घर पे, राइट। तो 2 दिन है, सैटरडे सुबह 9 बजे तक मेरे पास आ जाए, अदरवाइज आई विल जस्ट give the message and personally talk to you. Okay, till then, stay home, stay safe, bye bye, have a nice day.